नमस्कार आरएसएन समाचार में था घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कर्या उद्घाटन। कया महिलाओं हर कदम विकसित भारत खातिर है अहम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरियाणा विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकारा ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हुए शामिल। कया जनतारी अपेक्षा और आकांक्षा ने पूरो करनो विधायकारी बड़ी जिम्मेदारी। पुलवामा आतंकी हमला की 6ठी बरसी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शहीद जवाना ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में प्रिसिशन प्रोग्राम ऑन रोबोटिक्स एंड एआई कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया एडवांस रोबोटिक और एआई तकनीक सु चिकित्सा क्षेत्र में आई नवी क्रांति। और प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जारी। मौसम विभाग ने मुजब 17 से 20 फरवरी दौरान राज्य रा उत्तरी और पश्चिमी भाग में कुछ ठोरा माथे हल्की बारिश होबारी संभावना। और अब नजर डाला खबर में विस्तार सु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। सम्मेलन रे संबोधित करता था का राष्ट्रपति कया के मां की माता और बहना पूरा विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। महिलाओं में आज मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वना आह्वान करता था का कया के महिला रो हर कदम विकसित भारत खातिर अहम है। Ladies and gentlemen, we are the age of technological disruption. The advances in technology have given us a better quality of life in some ways. In such a competitive world, we must ensure that our human values remain intact. In fact, every human being needs to put in extra efforts consciously to promote human values of compassion, love, and unity. This is where the role of women becomes very important. Women have a special ability to lead through compassion. They hold the ability to look beyond the individual and work for the well-being of families, communities, and even relationships of the global level. Today, women who have contributed the development of the people and the nations through their own unique ways are present here in the conference. I am told that they will deliberate upon the matters concerning mind and consciousness. I am told that the sessions in this conference will focus on using the power of mind in overcoming various challenges. I am confident that all the women attending this conference will come out with such spiritual principles that can be applied by people to make their lives and also the lives of those around them more beautiful and peaceful. Conferences like this also spread the message that a person is not an isolated entity, but part of an interconnected whole. Ladies and gentlemen, I am told that this conference will also hold sessions on mental wellness. In today's world, mental health has become one of the most crucial issues facing people of all age groups. Women in particular are at the crossroads of multiple challenges, including competing professionally, meeting societal expectations, and fulfilling personal aspirations. Sometimes the cultural norms of a society make it difficult for women to speak openly about their emotional well-being. Each of us needs to understand that mental wellness is fundamental to the ability of any woman to lead a meaningful life and contribute to the family, society, and the world.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरियाणा विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकारा ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल हुआ। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का बिरला कहा कि जनता विधायका ने विश्वास के साथ चुन भेजा है। जनता सु सीधो जुड़ाव होबारे कारण विधानसभा सदस्य री बड़ी जिम्मेदारी है। वना कहा कि माने जनता री अपेक्षा और आकांक्षा ने पूरो करनो है। सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरुओं का हो, सबका एक गौरवशाली इतिहास हरियाणा का रहा है और इसीलिए इस हरियाणा विधानसभा का भी अपनी एक विरासत रही है। विरासत के साथ विकास एक ऐसा मॉडल है जो सभी राज्यों को एक दिशा देता है। मुझे खुशी है कि नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश और विकास की ओर बढ़ रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक परिवर्तन हो और उसके साथ कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहां के चुने हुए माननीय विधायकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सब माननीय विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिनको जनता ने बहुत विश्वास, भरोसे के साथ चुनकर भेजा है। मुझे खुशी है कि यहां 40 विधायक पहली बार चुन के आए हैं। मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि पहली बार आप चुनकर आए हैं और इसलिए आपको अनुभव भी प्राप्त करना है और जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करना है। राज्य के विधानसभा सदस्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधानसभा सदस्य की जनता से सीधा संवाद होता है, निकटता होती है और उसके कारण लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं कुछ ज्यादा रहती है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है। जितना ज्यादा भरोसा, जितना ज्यादा विश्वास, उतनी ही जिम्मेदारी ज्यादा। और इसीलिए एक तरफ हमारे विधानसभाओं के मतदाताओं की हमारी जिम्मेदारी है, उनकी चिंताएं, उनकी कठिनाइयां का समाधान हमें इसी विधान मंडलों से खोजना है। दूसरा, राज्य की जनता की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें एक विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा ने चुनकर भेजा है, लेकिन आप एक विधानसभा का नहीं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं। पुलवामा आतंकी हमला ने आज 6 साल हो चुका है। 14 फरवरी 2019 ने आज के दिन बड़ा आतंकी हमला ने अंजाम दियो गयो, जिनमें कई जवान शहीद हो गया। सोशल मीडिया माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शहीद जवाना ने श्रद्धांजलि दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहा कि एडवांस रोबोटिक और एआई तकनीक सु चिकित्सा क्षेत्र में नई क्रांति आई है। एआई रे माध्यम से बीमारियां रो इलाज आसान हो रहा है। वना कहा कि डिजिटल इंडिया में एआई रो प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार रो माध्यम बन्यो है। उप मुख्यमंत्री जयपुर आरआईसी में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज और वट्टी कुट्टी फाउंडेशन यूएसए कानीसु आयोजित प्रिसीशन प्रोग्रेस ऑन रोबोटिक्स एंड एआई कार्यक्रम ने संबोधित किया। वना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में सस्तो और सुलभ इलाज उपलब्ध करवाता था का चिकित्सा तंत्र ने मजबूत करे जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर्स पूरे विश्व में प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्होंने।
और अभी भी जो पूरी टीम है एसएमएस की बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग पूरी तरह से सरकार अपनी ओर से जितना भी हो सकेगा उतना मेडिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए फंड्स भी देगी और बहुत अच्छा हम लोग जो भी प्रस्ताव आएंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है राजस्थान का उसको और मजबूत करेंगे। जयपुर में आज 3 दिवसीय ऑन रिप्रोडक्टिव बायोमेडिसिन रा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन री शुरुआत हुई। सम्मेलन में देश विदेश रा 400 सु बत्ती प्रतिभागी भाग ले रहा है। सम्मेलन रो मुख्य उद्देश्य प्रजनन बायोमेडिसिन रा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान ने बढ़ावा देनो है। सम्मेलन ने विभिन्न विशेषज्ञ संबोधित कर्या। This conference should familiarize the attendants, which are quite a few hundred, with all that is happening in the field of reproduction and fertility and related sciences. जो ये कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो यहाँ आयोजित की जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ विमेन पे नहीं बल्कि सभी पे आता है, उसके संबंध में ये आयोजित की जा रही है। कि इस कॉन्फ्रेंस का जो ध्येय है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू है उनको डिस्कस करना, डेलिब्रेट करना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एरिया में जो रिसर्च हो रही है उसका ट्रांसलेशनल वैल्यू क्या हो, सोसाइटी के अंदर हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे और भी कोई रिलेटेड डिसिप्लिन हो। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बेसिक रिसर्च से लेके एडवांस रिसर्च एंड एडवांस रिसर्च का क्लिनिकल एप्लीकेशंस इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पर्टिकुलरली इन द रिप्रोडक्टिव वुमेन्स के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, 3 दिन तक लगातार इस विषय पर चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस में 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है 5 कंट्रीज से और 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया से, और इसके अंदर 100 प्लस एमिनेंट रिसर्च साइंटिस्ट, गेस्ट, डिग्निटरीज, स्पीकर्स सबने ज्वाइन किया है, जो कि ना केवल डॉक्टर्स हैं बट रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं, क्लिनिशियंस भी हैं और यंग स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स सभी हैं। अलावा हमारा IVF एंड IUA पर पैरेलल वर्कशॉप्स हैं संडे के दिन, जिसमें रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ द जयपुर आर जॉइनिंग अस। राज्य सरकार री लोक कल्याणकारी नीति रे तहत जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय संयुक्त तत्वाधान में धौलपुर स्थित रोजगार कार्यालय में 1 दिवसीय वृहद रोजगार सहायता शिविर रो आयोजन करियो गयो। शिविर में बेरोजगार आशार्थियों ने व्यवसायिक मार्गदर्शन दियो गयो। जिला रोजगार अधिकारी विकास कुमार बताया कि शिविर में विभिन्न कंपनियां आशार्थियों रा साक्षात्कार लिया। जिला प्रशासन और रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन 14 फरवरी 2025 को किया जा रहा है। इसमें स्थानीय और बाहर से जयपुर, दिल्ली से कई कंपनी आई और कम से कम 500 से ज़्यादा रिक्तियाँ लेके आई थी, जिसमें मुख्य रूप से आमदनी कंपनी जयपुर से, GS से, पटियाला से, दीपक इंडस्ट्रीज फरीदाबाद से, रक्षा सिक्योरिटी दिल्ली से। 1 दिवसीय वृहद रोजगार योजना शिविर में आया हूँ। ये हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही पूर्णतः आयोजित शिविर है, जो बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही मायनेदायक है। रोजगार कार्यालय जिला धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये जिला प्रशासन, जिला कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया है और ये अप्लाई फॉर्म के लिए मैं अप्लाई करने आया हूँ। देखते हैं, ये बढ़िया वैकेंसी है। चूरू सगला निजी राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी स्वीप गतिविधि पाती माँ और पितारा नाम अपना माता पिता और अभिभावकों ने पत्र लिखा। हजारों की संख्या में सगला छात्र छात्रा अपना अभिभावकों नाम पाते लिख मतदान खाते जागरूक करया और विभिन्न ऐप के बारे में भी जानकारी लिखी। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खसोली के अंदर माँ पिता के नाम छात्र छात्राओं से पाती लिखवाई गई है, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता से अपील की है कि देश हित के लिए अच्छी सरकार चुने, उसके लिए वोट देना बहुत जरूरी है। तो 100% मतदान होना चाहिए। और निर्वाचन आयोग कौन कौन से ऐप्स हैं उनके माध्यम से सुविधाएं देता है, उनके बारे में भी बच्चों ने इस पाती के अंदर जानकारी दी है। आज हमारे स्कूल में ELC गतिविधि के तहत माता पिता के नाम पाती लिखी गई, जिसके अंदर चुनाव से संबंधित वोट डालने, जागरूकता फैलाने, अपने अड़ोस पड़ोस में अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों ने माता पिता के नाम पाती लिखी है। हमने आज माता पिता के लिए पाती लिखी है
और उसके अंदर हमने मतदान करने के लिए अवेयर करना चाहिए और हमें आस पड़ोस वाले लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि सभी को वोट देना जरूरी है। अगर हम मतदान करते हैं तो हमारे देश का भविष्य सुधरता है। मतदान करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐप हैं जो सरकार ने जारी कर रखे हैं, जैसे कि एक ऐप है VH ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस ऐप के अंतर्गत हम घर बैठे अपना 18 साल, जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटा सकते हैं और घर बैठे हम ये काम कर सकते हैं। राजस्थान में पर्यटन और फिल्म पर्यटन ने प्रोत्साहन देवा खातर राज्य सरकार राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति बनाई है, जिनने जयपुर में 8 और 9 मार्च ने आईफा अवार्ड समारोह में लॉन्च करे जावेलो। इन नीति सु जठे एक और राजस्थान पर्यटन ने पहचान मिलेली, वटे ही फिल्म पर्यटन ने भी बढ़ावो मिलेलो। प्रस्तुत है माखिया खास रिपोर्ट। आईफा अवार्ड्स में लॉन्च होंगी नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। राजस्थानी फिल्मों को ज्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश। आईफा का स्टेज राजस्थानी कला और संस्कृति की थीम पर बनाया जाएगा। राजस्थान देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में एक प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर देशी विदेशी पर्यटकों को काफी लुभाती है, जिसको देखने यहाँ लगातार हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते रहते हैं। राजस्थान की इस सांस्कृतिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए जयपुर में पहली बार 8 और 9 मार्च को JECC में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी महोत्सव एवं पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा महोत्सव को लेकर पर्यटन भवन में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को राजस्थान में बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। टूरिज्म पॉलिसी में भी कैसे और इनकरेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स राजस्थान विजिट करें। आईफा तो हो रहा है बहुत जल्दी और अब तो उसका उनकी जो शूटिंग्स भी है, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स आके हमारे अलग अलग डेस्टिनेशंस में शूटिंग्स करने वाले हैं, वो भी शुरू हो चुका है। इससे पूर्व भी राजस्थान में G20 राइजिंग राजस्थान जैसे बड़े कार्यक्रम शानदार तरीके से आयोजित हो चुके हैं। शासन सचिव रवि जैन ने बताया आईफा 2025 के इस अवसर पर शहर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही शानदार सजावट भी की जाएगी। यह आयोजन टूरिज्म के क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से मैं सोचता हूँ एक माइलस्टोन होना चाहिए जयपुर के लिए। पूरे विश्व में इसके बाद में आईफा 25 के आयोजन के बाद से एक अलग से इसकी टूरिज्म में एक आकर्षण बढ़ेगा। गौरतलब है कि राजस्थान हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री के लिए पसंदीदा जगह रही है। राजस्थान में पहली बार जयपुर में 8 और 9 मार्च को आईफा अवार्ड का समारोह होने जा रहा है, जिसमें राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर राजस्थान के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, साथ ही फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुना मेघवाल कहा कि 3 नवा कानून लागू होबारे पाछे कोर्ट में लंबित मामला में तेजी सु कमी आवा लगी है। आज जोधपुर में मीडिया सु बातचीत करता था वना मल्लिकार्जुन खड़गेरा दिया बयान माथे कहा कि वक्फ बोर्ड में कराया गया संशोधन ने लेर JPC रो गठन कराया गया है, सगला सु सुझावा ने लेर एक रिपोर्ट तैयार कर पेश करेगी है। इनमें विरोध जेडी कोई बात नहीं है, विपक्ष बेवजह संशोधन रो मुद्दों बना रही है। तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए थे। ये जो हमारा IT का सेक्टर है उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जो हमें उससे संबंध में बैठकें होती रहती है, समीक्षात्मक बैठकें, और मुझे लगता है कि ये जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उसके बाद जो मुकदमे हैं हमारे इस देश में अलग अलग कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, उसमें तेजी से कमी आएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में तो उसके साथ ही एक JPC बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें लोकसभा के भी सदस्य थे, राज्यसभा के भी थे। उसकी रिपोर्ट पेश होनी थी। अब उन्होंने कहा कि
ये रिपोर्ट कैसे पेश कर रहे हो? जिन सदस्यों ने डिसेंट दिए थे वो डिसेंट उसमें सारे संलग्न थे। अब पता नहीं उन्होंने किस आधार पे उस रिपोर्ट का विरोध किया, राज्यसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया। बाद में गृह मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा अभी जितने भी आपके डिसेंट हैं नोट वो सब रिपोर्ट के साथ संलग्न रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, हमें इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। સંસદમાં વક્ફ બોર્ડ કાનૂનમાં બદલાવના મુદ્દા માથે હોર્યા વિરોધને લેર કેન્દ્રીય મંત્રી ગણેશસિંહ શેખાવત કહ્યા કે ઇનરો વિરોધ વેહી લોક कर રહ્યા है जिन्हें આપણા મજહબ આ સમાજી સંપત્તિને હડપ આપણા વ્યક્તિગત સ્વાર્થમાં ઉપયોગ કર્યા है। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज जोधपुर पुग्या जठे वणा आपरा निवास माथे आमजन आर कार्यकर्ता सु मुलाकात करी। इन दौरान वणा मीडिया सु बात करता था कहा कि अबिल माथे चर्चा रे टेम सगला ने अपनी बात के भरो अधिकार वेलो वणा महाकुंभ ने लेर कया के इन माए रोज नवा रिकॉर्ड बन रहा है। अब ताई करीब 50 करोड़ लोग संगम माए पवित्र डुबकी लगाई है जो खुद माए नोवो विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे लोग जिन्होंने मजहब की संपत्ति को, संप्रदाय की संपत्ति को, समाज की संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति को हड़प करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग किया है, इसके अतिरिक्त तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करके वो समाज में जो सामाजिक तानाबाना है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे व्यापक अध्ययन के बाद, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो संसद का मिनी कंपोजिशन है, उन्होंने पूरे डिस्कशन के बाद में उसको अपनी रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट टेबल हुई है, लोकसभा में जब पास होने का विषय आएगा उस पर विचार विमर्श होगा, उस समय सबके पास में अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होगा। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी भी विषय को डिस्कशन के लिए भी नहीं चाहते, ऐसा कैसे? और महाकुंभ में जिस तरह से अब तक लोगों की आवक हुई है, 50 करोड़ लोग से ज्यादा लोग अब तक महाकुंभ में आकर के संगम पर डुबकी लगा चुके हैं, ये अपने आप में एक विश्व का कीर्तिमान है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ कि जिस बेहतर तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया, पूरी दुनिया के प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मनुष्यों के एकत्रीकरण जहाँ कहीं भी दुनिया में होता है उसका प्रबंधन करने वाले लोग आने वाले समय में इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं को एक केस स्टडी मान करके इसकी पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। खेरथलरी भिवाड़ी पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग ने मजबूत करता खातर एक महत्वपूर्ण पहल करी है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री नेतृत्व में जिला में पुलिस मित्र, महिला सुरक्षा सखी और साइबर वॉलंटियर री नवी भर्ती प्रक्रिया शुरू करी गई है। इन पहल रो मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करनो है। इन तहत किसान, विद्यार्थी, महिला, व्यवसायी सु लेर निजी क्षेत्र कर्मचारी ताई भी कोई भी इन अभियान रो हिस्सो बन सके है। एसपी ज्येष्ठा मित्री बताए कि यो कदम जिला में अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा ने मजबूत करवा में मददगार साबित हुएलो। भिवाड़ी पुलिस द्वारा विगत कुछ समय में कई सारे पुलिसिंग को पारदर्शी बनाने हेतु तथा आम जन को राहत पहुंचाने हेतु कई नवाचार किए गए हैं। उसी क्रम में मैं सभी लोगों को ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि पुलिस में एक कम्युनिटी पुलिसिंग शाखा होती है जिसमें आम जन भी पुलिस के तंत्र से जुड़ें, पुलिस के आसूचना तंत्र को मजबूत करें तथा आम जन जिनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे पुलिस को अप्रोच करें, उस हेतु CLG मेंबर्स, जिसको हम कम्युनिटी लाइजन ग्रुप्स, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, साइबर वॉलंटियर्स एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम रक्षक, तो इन ग्रुप्स का पुलिसिंग में समावेश होता है। हमारे द्वारा नवाचार ये है कि सभी वार्ड, सभी ग्राम पंचायत, सभी आयु, सभी वर्ग तथा सभी प्रोफेशनल्स जो हैं इसमें आगे बढ़ चढ़कर अपना आवेदन दें तथा पुलिस से जुड़ें, जिससे कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पुलिस तक रहे और आम जन तक राहत पहुंचे। बूंदी में चल रहा खाद्य विभाग रा गिव अप अभियान रे तहत ऐसे परिवार ने चिन्हित करे जा रहे हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त में। जिला में अबार ताई लगभग 900 परिवार कानी सु स्वेच्छा सु खाद्य सुरक्षा रो लाभ छोड़वा रो आवेदन करे जा चुके है। अभियान में अबार ताई 3781 परिवार योजना सु हटाया जा चुका है। 28 फरवरी ताई अगर खाद्य सुरक्षा अभियान रा अपात्र लोग अपनो नाम या परियोजना रो नाम भी हटवावा है तो वासूली समेत कानूनी कार्रवाई भी करी जावेली। ऐसे परिवारों को
या उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा में पात्र नहीं होने के बावजूद भी लगातार कई वर्षों से उसका गेहूं ले रहे थे। ऐसे लगभग 1400 राजकीय सेवारत लोगों को ढूंढा है, में शामिल थे और गेहूं ले रहे थे। तो ऐसे लोगों से हमने 27 रुपये किलो के हिसाब से वसूली की है और लगभग हमने 1 करोड़ 45 लाख की वसूली राजकोष में इनसे लेकर जमा करा दी है। तो जिनके परिजन सरकारी नौकरी में है लेकिन राशन कार्ड अलग बनाकर वो उसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को हमने नोटिस जारी किया है और 20 लोगों को तो हम नोटिस जारी कर चुके और स्वेच्छा से लगभग 900 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हमें कार्यालय में आवेदन भिजवाया कि हमारा नाम हटा दिया जाए। हनुमानगढ़ जंक्शन में काल देर रात नगर परिषद प्रशासक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा सॉलिड वेस्ट प्लांट रो निरीक्षण कर्या। वना बताया कि आबोहर बाईपास माथे बन्या सॉलिड वेस्ट प्लांट में कचरा सु खाद बनावारू काम शुरू हो गयो है। बीकानेर संभाग में यह एकमात्र ऐसो प्लांट है जो रोजाना 6 टन सिटी कंपोस्ट बना सके है। 26 जनवरी के पाछे सिटी कंपोस्ट बिक्री खातर उपलब्ध हो रही है। अपनी तरह का है, इसको भी अभी आप लोगों के साथ में इसका ट्रायल रन यानी चालू होता है प्लान, वो रनिंग स्थिति में आपको भी यहाँ चल रहा था। इसलिए 5-7 तरह के जो आउटलेट वो निकलते हैं, उन सब का अलग अलग यूज है और ये काफी जो कचरे के ढेर हैं वो भी हमारे लिए संकट था, वो खत्म हो जाएगा और कई इसके जो यूज के लिए कंपोनेंट बनेंगे वो यूज भी होंगे और कॉन्ट्रैक्टर या जिन्होंने प्लांट लगाने का अच्छा काम किया है उनके लिए भी एक थोड़ा जीविका का साधन बनेगा और उसके लिए प्रेरणादायी रहेगा। प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर बने हुए है। हालांकि दिन में चोखी धूप खिलवा सु लोगों ने सर्दी सु राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने मुजब आगामी दिना में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव सु 17 से 20 फरवरी के दौरान राज्य रा उत्तरी और पश्चिमी भाग में कुछ ठोरा माथे हल्की बारिश होबारी संभावना है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया। महिला रो हर कदम विकसित भारत खातिर है अहम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज हरियाणा विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हुआ शामिल। कया जनता री अपेक्षा और आकांक्षाओं ने पूरो करनो विधायकारी बड़ी जिम्मेदारी। पुलवामा आतंकी हमला की 6ठी बरसी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शहीद जवानों ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर में प्रिसीशन प्रोग्रेस ऑन रोबोटिक्स एंड एआई कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कया एडवांस रोबोटिक और एआई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में आई नवी क्रांति। और प्रदेश में सुबह शाम तेज सर्दी रो असर जारी। मौसम विभाग ने मुजब 17 से 20 फरवरी दौरान राज्य रा उत्तरी और पश्चिमी भाग में कुछ ठोरा माथे हल्की बारिश होबारी संभावना। राजस्थानी समाचार में अब के लिए अतरो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।